मेरी ना डेट शीट आ गई। देख लिया था, गुड। लास्ट क्लास में पीएनसी के क्वेश्चंस किए थे हमने, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन किए थे, कुछ रिजल्ट डिराइव करे थे। यू गाइस हैव दिस असाइनमेंट, पीएनसी वाला। लास्ट क्लास में लोग थे नहीं ना? वी गॉट आवर डेट शीट फ्रॉम स्कूल। ओके, क्या है, कब है? पहला पेपर फिजिक्स इज ऑन 29th of August। हाँ, क्या 20। सिलेबस क्या है, भेजना मेरे को। रोटेशनल मोशन पूरा। हाँ, अच्छा, थोड़ा रशअप करना पड़ेगा मतलब। Hello, sir. हेलो, स्विच ऑन योर कैमरा प्लीज। So my camera doesn't work. क्यों, क्या हो गया? There's some problem, like I don't know how to explain it. ओके, कृतिका वेलकम। Thank you, sir. हैव यू डन पीएनसी इन स्कूल, कंपटीशन कॉम्बिनेशन? No, sir. नो, ओके। Mm. So I'm in the middle of that. I'll just give the basics. If you select R objects out of n distinct objects, number of ways to do it is this: n factorial by R factorial, n minus R factorial. This is number of selections. Factorial is basically continued product of first n natural numbers. Factorial 5, like, open 5, 4, 3, 2, 1. N factorial would be, n into n minus 1, n minus 2, till 3 to 1. So continued product of first n natural numbers called factorial. Another formula is NCR is NCn minus R. Also, if you have NCX is equal to NCY, it would mean x equal to y or n is equal to x plus y. In the last class, I derived few formulas, results, and those are NCR plus NCR minus 1 is always n plus 1 CR. NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR. So if you have these two numbers the same, these are two consecutive numbers, the result would be always n plus 1. I mean, you increase it by 1, and out of these two, whichever is greater. NCR is this. Hmm? Y selecting Y object out of n objects, selecting X object equal to from Y n objects. NCR means number of ways or number of selections of R items out of n items. That is the meaning of NCR, number of selections. So how to use this? Suppose you have 50C1, 50C5 plus 50C6, right? So this number is the same. These two are consecutive. So if I use this result, it would be 51C6. So that's how you can use this result. Also, NPR. NPR is n factorial over n minus R factorial. This is number of arrangements of R objects out of n distinct objects. This is NPR. हाँ. So NPR is n factorial over n minus R factorial. Kritika, camera on karo. And it is number of arrangement. When you say arrangement, order is important.
That means AB and BA would be different permutations. AB and BA would be different permutation because order matters. Like in making numbers or writing letters, this will be important. Order is important. So NPR is always n factorial over n minus r factorial. Or this. Either x equal to y or n is equal to x plus y. तुम लोग लास्ट क्लास में क्यों नहीं आए थे? तुम्हारा? एंड व्हाट अबाउट यू? अच्छा, नहीं, कोई नहीं, ऐसा नहीं था, बट यू थ्री वर नॉट देयर, रेस्ट पीपल वर देयर. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करूं. असाइनमेंट का पेज नंबर 1 का वे काम. अच्छा, मैंने ग्रुप में डाला था ना ये असाइनमेंट. I'll क्वेश्चन करने हैं 1 ऑनवर्ड्स. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या ये 43 मल्टीप्लाइड बाय NP3 है? 1 मिनट, 1 मिनट, बता रहा हूँ. कृतिका, मैंने देखो असाइनमेंट सेंड किया है. फर्स्ट क्वेश्चन में फोर्स NP5 is equal to 42 into NP3 and n is more than 4. Find the value of n. असाइनमेंट है तुम्हारे पास? फर्स्ट क्वेश्चन. तो कृतिका, कौन से चैप्टर स्कूल में हो चुके हैं अभी? हम्म. ओके, ऑल राइट. फर्स्ट क्वेश्चन यही तो है. कितनी बार पूछोगे? सर, हाँ. मेरे मिड टर्म में फर्स्ट 8 चैप्टर्स आ रहे हैं. फर्स्ट 8? हाँ, बायनॉमियल थ्योरम तक. ठीक है, इसके बायनॉमियली करेंगे. मेरे में 6 ही आ रहे हैं, लास्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. ठीक है, गुड. तुम्हें फिजिक्स में एक्स्ट्रा आ रहा है ना? हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर के बीच में 2 दिन है. चलो ठीक है. रोटेशन तो मेरे से अलग से करना पड़ेगा, वरना रोटेट हो जाओगे तुम. पूरा रोटेशन आ रहा है? In the first question you have, first part, NP5 is equal to 42 NP3 and it's been given that n is greater than 4. So you can open NP5 using the formula n factorial over n minus 5 factorial. This is 42. NP3 can open again the formula n factorial over n minus 3 factorial. अब n minus 5 और n minus 3 में कौन सा बड़ा फैक्टोरियल है? Out of n minus 5 and n minus 3. हाँ, क्या? N-3. हम्म.
सो ये कैंसिल हो गया. हम्म, क्वेश्चन में दिया हुआ है. n के दो आंसर आएंगे ना. एक नेगेटिव आ रहा है. हाँ, वो डिस्कार्ड हो जाएगा. इट इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो अब n-3 और so out of n-3 n-5, n-5 छोटा है बिकॉज n में से 5 माइनस हो रहा है, यहाँ पे n में से 3 माइनस हो रहा है. तो यू कैन ऑलवेज ओपन बिग फिक्टोरियल. लाइक n फिक्टोरियल में से अगर n कॉमन लेते हो तो क्या बचता है? n-1. n-1 से n-1 कॉमन लोगे तो बचता है n-2 फिक्टोरियल. ठीक है. सो बड़े वाले फैक्टोरियल को ओपन कर देते हैं. So bigger factorial is n-3. If I open it, if I take n-3 common, it would be n-3 and you'll be left with n-4 factorial. फिर again out of n-4 factorial, you take out n-4, so you'll be left with n-5 factorial. So now you can cancel n-5 factorial with n-5 factorial. Now one method is that you factorize, make a quadratic, but उससे better होगा इसको फैक्टराइज मत करो, मल्टीप्लाई मत करो. ट्राई टू राइट द राइट साइड एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, है ना. n-3 n-4 दो कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना. सो इट वुड बी 7 and 6. ठीक है. n-3 बड़ा नंबर है, n-4 छोटा है. सो यू कैन कंपेयर दिस विद दिस. सो व्हेन n-3 इज इक्वल टू 7, n की वैल्यू आ गई 10. Right? So don't make a quadratic. You can factorize and write the number as two consecutive numbers and then just compare. क्वाड्रेटिक से भी आएगा लेकिन फिर क्वाड्रेटिक थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, उसमें दो आंसर आएंगे. एक आंसर यू कैन डिस्कार्ड यूजिंग दिस. तो क्वाड्रेटिक फॉर्म करके भी आ सकता है. नहीं नहीं, एक ही क्वेश्चन किया अभी तक. हाँ, लिख लो. कृतिका तुम प्रीवियस क्लासेस व्यू कर लेना. ठीक है. एक तो पोर्टल से भी देख सकती हो, दूसरा एनआईसीएस इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल है, वहां से भी देख सकती हो. आवाज आ रही है? You can, like in your phone, in the YouTube, you can search for NICS Institute. वहाँ पे प्लेलिस्ट है सारे, उसमें ना वीडियो मिल जाएंगे तुम्हें. अभी फोन अभी है फोन तुम्हारे पास? करो ऑन, देखो एक बार. सर्च NICS इंस्टीट्यूट इन द यूट्यूब. हम्म. 5. हम 5. देखो लिख रहा है. दिव्या हो गया. सेकंड पार्ट करते जाओ, रुकना नहीं है, रुकना मना है. कौन सा वाला सेकंड? क्या क्वेश्चन है वो? कट गया. फिर ये क्या किया? एन चेक कर लो आंसर पीछे से. फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट. कृतिका कुछ समझ में आ रहा है?
हम्म हम्म नहीं, वो तो उसका आया था, दिव्या का आया था, और हम्म हाँ। नहीं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्या कर रहे हो तुम, कैलकुलेशन मिस्टेक करती हो। एन फैक्टोरियल ओपन किया, ये n-1 था ना, तो ये n-1, राइट, ठीक, n-5 हो गया। n-5 था ना ये, अच्छा ठीक है, तुमने ओपन किया, n-5 काट दिया, n किया, n/n-4, दिस इज 5/3, 3n इज 5n-20। सेकंड पार्ट का 9 आ रहा है, 10 आ रहा है? 10। हाँ, 10। ये लोग, ये लाइन 9 आ रहा था इसका, तो दिखाना। अच्छा, वो सेकंड था, ठीक है, सॉरी। फर्स्ट का सेकंड पार्ट is np4 divided by n-1 p4 equals to 5/3। np4 को ओपन कर लो, n factorial by n-4 factorial whole divided by n-1 factorial over n-1 minus 4 factorial is equal to 5/3. So this would be n factorial by n-4 factorial into, this is n-5 factorial by n-1 factorial। हमेशा बड़े फैक्टोरियल को ओपन करना है ताकि वो छोटे के इक्वल हो जाए। एन फैक्टोरियल से एन कॉमन लोगे तो n-1 बचता है, तो फ्रॉम एन फैक्टोरियल टेक एन कॉमन, इट वुड बी n-1 फैक्टोरियल। दिस इज n-4, दिस इज n-5, n-4 इज अ बिगर फैक्टोरियल, n-4 कॉमन लिया, वो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन थे, वो फॉर्मूला डिफरेंट था बट सिमिलर थे, वो भी फैक्टोरियल सभी में आता है ना। दीज आर परमुटेशन वाले क्वेश्चंस। अब ये कैंसिलेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3n इज इक्वल टू 5 इंटू n-4, n is equal to 10। नहीं, वो तो सी का था ना फॉर्मूला, ये तो पी है। नंदनी, हो गया तुम्हारा? कौन सा कर रही हो तुम? I'm finishing it 1 second. ठीक है, सेकंड वाले में क्या, सेकंड में आर तो है ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है?
ये हो गया, कर दो। तुम कौन सा कर रही हो? देखते तुम ज्यादा काम कम करती हो, करो। सेकंड कर लो। आंसर चेक करो। चलिए। हम्म। ये किसके बराबर होगा? तो दृष्टि थर्ड करना। हम्म। छोड़ दो, नेक्स्ट सेकंड पार्ट कर लो उसका। सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन तो सेम ही है। हाँ, लीव दैट। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे 1 and 12 लिखा या 21 लिखा, वो करेंगे ना हम। हाँ, अगर फोकस करोगे तो आ जाएगा, क्वेश्चन ही देखते रहोगे तो नहीं आएगा। हम्म। सिक्स्थ क्वेश्चन में सब मल्टीप्लाई हो रहा है। चल, दोबारा किया। 4 into 3 कर देती ना उसको। अच्छा, तो 4 into, तो कौन सा बड़ा नंबर है? R-6 ना। ठीक है। क्या बोलिए दिव्या? सिक्स्थ क्वेश्चन में बीच में +5 है। हाँ, +5 डॉट into 9p4 है वो। पूरा मल्टीप्लिकेशन में। ऐसा है ना, इट इज 9p5 + 5 into 9p4। किससे कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा? ब्रैकेट का। कैसी बातें करती हो? 5 9p5, हाँ। ब्रैकेट नहीं, इसका मतलब यही है, अगर होता तो मतलब। ठीक है। Sorry, 1 मिनट दिखाना। ये क्या किया तुमने? R7 - R को 6 उल्टा कर दिया, तो फिर आंसर गलत आएगा ना। तो फिर 5 - 10 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। डोंट डू दिस, क्योंकि कंजुगेट नंबर्स है ना, वो नंबर भी डिफरेंट हो जाएंगे। 7, हाँ, 7 - R would be 3, तो R would be 6 - R is 3,
बिकॉज 7 - r तो बड़ा नंबर है. हाँ, 7 - r वुड बी 4, सो r वुड बी 3. ये बड़ा नंबर है ना. Odd this. Hmm. राइट साइड ये. या तो इसको प्राइम फैक्ट नहीं, कैसे करोगे इसको, फैक्टोरियल में कन्वर्ट करो या तो. ये 10 फैक्टोरियल का 10 कैसे बन गया? अच्छा, तुमने इसको वो कर दिया. 10 को कांट राइट 1 2 3 टाइप्स ना. 1 मिनट. तो ये कर सकते हैं क्या कि 10 - 8 9 - r वगैरह इज लाइक नहीं नहीं नहीं, ये तो प्लस है ना, तुमने इसको मल्टीप्लाई कैसे कर दिया? नंदिनी कौन सा कर रही हो तुम? ये वाला खत्म कर दी सर. 3. यस सर. 4. अद्विका 4 कर दो. हम्म. अच्छा, फिफ्थ कर दो. 4 छोड़ देना फिर, है ना. ना 7th क्वेश्चन में फोर्थ. 30,000. फोर्थ तो सेम का है. अच्छा, ठीक है, तो मतलब फिफ्थ हमारा हो चुका है ये. हाँ ठीक है. 6 करो फिर, बोर्ड पे करो तुम. आएगा, कर लोगे तुम. तुम क्यों क्वेश्चन क्यों नहीं करती हो तुम? एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, ऐसे नहीं होगा, मैथ्स को लिख लिख के करना पड़ता है. 7th क्वेश्चन में 30,800 है. हाँ लिखा ना. हाँ, 30,800 = 1. एक क्वेश्चन हुआ अभी तक? कहाँ किया सॉल्व, दिखाना मुझे आगे कहाँ हुआ ये. ये लेफ्ट साइड में इक्वल साइन क्यों लगाती हो तुम? इस- इसकी जरूरत नहीं है ना. क्या हुआ? कौन सा? फिफ्थ. ना, अब पता तुम्हें क्या करना है.
यू हैव 10 फैक्ट, यहाँ पे 10 नहीं नहीं कैंसिल मत करो, इसको 10 फैक्टोरियल बनाओ। कैसे बनाओगे? 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो। 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में, 2 को बाहर रखो, 10 को अंदर ले लो। 10 × 9 फैक्टोरियल। तो फिर अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ 5 से भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, इक्वल टू 10 फैक्टोरियल/10 - r फैक्टोरियल। हाँ तो 10 - r = 5 आ तो गया। हाँ हाँ, इस टू 1, नहीं नहीं फैक्टोरियल इस टू 1 है शायद वो। करो। क्या? क्यों नहीं कर सकते? अगर 2x² = 2 स्क्वायर है तो x = 2 नहीं हुआ? Right. So 5 factorial is 10 minus r factorial. That means 5 is equal to 10 minus r. 5 equal to 10 minus r. So r will be 5. आगे 6 वाला कर लिया तुम बोर्ड? करो। कट जाएगा। 56 को ओपन करना पड़ेगा 2 बार, 54 फैक्टोरियल कट जाए। प्रेशर कर दो यार बोर्ड पे। हाँ। हम्म। हाँ करो तो सही। फॉर्मूला यूज करना है। आओ। कौन सा? तो हम्म। 9th क्वेश्चन में 2p2 है 2p1 की जगह। हाँ इसमें ब्रिस्पेंट है। इल बी 1 + 1p1। 2p1 काट दो, 2p2 होगा वो। देयर 2p1 2 टाइम्स है ना वो, तो बेसिकली 2p2। सो विल बी 1 × p1 2 × p2। दूसरा वाला काट दो। प्रेशर कर रही हो?
7 कर रही हो ना? हम्म। ऐसे ही करना ना। तो फिर इसके बाद ना इसको मल्टीप्लाई मत करना, इनको कंसेक्यूटिव में तीन। देखा कुछ तो करा था आपने, कुछ था देना। हम्म। एक मिनट, गलत फॉर्मूले गलत लगा रही हो तुम तो। एन हाँ, एनपीआर का फॉर्मूला पता है क्या है? एनपीआर इज एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये करना है तुम्हें। फॉर्मूला गलत हो रहा है यहाँ पे, इसको चेंज करो। 50, कोई बात लिखा रहने दो उसको, यहाँ लिख दो 56 माइनस दिस। 56 माइनस साइन, बस यहाँ पे जाएगा। ऊपर 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 54 माइनस, इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को नेक्स्ट स्टेप में। ये हो जाएगा 50 माइनस आर, बिकॉज आर भी तो है। 56 माइनस आर माइनस 6, तो 50 माइनस आर हो गया ना। ब्रैकेट तो ओपन करो ना। ये पूरे का पार्ट है ना। दिस इज पूरा एक पार्ट है ये। एन माइनस आर इज इनसाइड द फैक्टोरियल, हाँ। हम्म। फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, फ्रैक्शन में नहीं आएगा ये। हाँ, पहले ओपन करो ना, 50 माइनस आर हो जाएगा ना वो। ऐसे थोड़ी हो सकता है। आर माइनस 6 होल फैक्टोरियल। अरे, जब बाहर माइनस साइन है तो नेगेटिव साइन चेंज होगा ना। ये क्या कर रही हो, क्यों लिख रही है उसको? फैक्टोरियल लिखो ना इसको, नेक्स्ट स्टेप में करना उसको। हाँ, 2n+1 को ओपन किया तुमने, ये आ गया। इसको किया, ठीक है, एन से एन कट जाएगा। 2n+1, 2n एंड 2n-1, n+2 को ओपन किया, n+2 n+1, ठीक है। हाँ हाँ, नेक्स्ट में करोगी ना इसको, 50 माइनस आर लिखोगी ना नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हो गया इनटू, इसको ओपन किया, दिस इज 54 माइनस आर माइनस 3 फैक्टोरियल बाय 54 फैक्टोरियल। ये कट गया, इक्वल 3800। ये आ गया। अब दिस इज 56 इंटू 50, 5 था ये हो गया 51 आर। ये हो गया। हाँ, तो इसमें इसको कॉमन ले लो। ये बड़ा है ना, नहीं, ऊपर वाला बड़ा है। तो फिर कहाँ कर, उल्टा कर दिया क्या मैंने? 54 माइनस आर माइनस सी था ना, 51 था। ठीक है ठीक है, 3800। यार वो 1300 नहीं है। अच्छा अच्छा, सॉरी। नाउ व्हाट यू डू इज, इसको ओपन करोगे तुम, इसको है ना, इसको नीचे ले जाओ। तो 51 माइनस आर कॉमन लिया, तो जाएगा 50 माइनस आर फैक्टोरियल। सो 50 माइनस आर फैक्टोरियल कट जाएगा, एंड दैट विल बी 30800 डिवाइड बाय 56 इंटू 55। ये कैंसिल कर देना। 10 आ रहा है। कितना? 10 आ रहा है। रे- 3800 अपॉन 56 इंटू अच्छा, 50। ये 10 आ रहा है। हाँ। दैट 50 माइनस आर इज इक्वल टू 10। 51 माइनस 10 इक्वल टू आर, आर इज 41। I can't do ninth question. 9 नहीं हुआ? एट्थ हो गया था। हाँ। एट्थ दृश्य करना बोर्ड पे तुम्हारा हो गया, कब है एट्थ? अच्छा, दिखाओ 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 दिखाओ। यहाँ पे तुम्हारी दो टर्म आ रही है, ऊपर एक ही टर्म कैसे आ रही है? कि मैंने
मैंने n को n से कैंसिल कर दिया वो तो ठीक है, and दैट्स 2 पर is like 3/5. नहीं, वो तो सही था। 2n+1 2n है ना, दिस इज 2n-1, n+2, n+2 ही था वो। n+2 कहाँ है यहाँ पे, कहीं है ही नहीं n+2। क्वेश्चन ही गलत कर रही हो तुम क्या कर रही हो बार बार फिर फोन पे। कोई बात नहीं। तो पीछे 10th क्वेश्चन का आंसर 1 दिया है और मेरा 100 आ रहा है। 10th का हाँ। 10th का 121 आना चाहिए मेरे ख्याल से। कहाँ से सही है? किस वाले में? नहीं, एक बार आएगा, वो मिसप्रिंट है। ये भी 2x P2 है, वो 2P1 नहीं है, वो 2x P2 है। मतलब इट्स लाइक 1x P1, 1+1 2x P1, 3x P2, 2P1, 2x P2, 2x P2, P2, and so on till, हाँ, till n into 9th हो गया, 8th हो गया। 10th तो तुमने पहले किया हुआ है सारा। इसमें एलसीएम लेते थे ना, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10 फैक्टोरियल एलसीएम आ जाएगा। हाँ, इस वाले में 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ये जाएगा 10/10 फैक्टोरियल। अब एन से एन काट दोगी, है ना, वो आ जाएगा। राइट साइड लिखो। राइट साइड क्या था? हाँ, ले जाओ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई तुम्हें वैसे ही करना है। हाँ, तो क्रॉस तो एन फाइंड करना है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगी क्या? दिस इंटू दिस क्वाड्रेटिक बनाओ, मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो। एन चाहिए ना? क्यों, एन एन कहाँ आया तुम्हारा भी? दिस इंटू दिस, ऐसे थोड़ी होता है। यू कांट, नहीं नहीं, यू कांट इक्वेट लाइक दैट। यू क्रॉस मल्टीप्लाई, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक, शी इज डूइंग इट, और फिर एन की वैल्यू आएगी। प्रिशा, तुम लिख के कर रही हो, दिखाना मुझे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, x1 आ रहा है, बट राइट साइड कितना था? राइट साइड तो 1/11 फैक्टोरियल नहीं था, वो कहाँ गया? x/11। अच्छा, तो फिर उसके बाद ये से कैसे कट जाएगा? वो गलत है आंसर। हाँ। हम्म इक्वल टू, ये तो इक्वल टू साइन है भाई, ये तो लाइक दिस। 121 आंसर है इसका। दिव्या, 10th का 121 आएगा, क्या हुआ? हाँ, आ गया। हम्म ये कहाँ चला गया? 2। हाँ, लाइक दैट। हाँ, दिव्या हो गया 9th वाला? नहीं। नंदिनी, कहाँ पहुंची तुम? So let's start at the ninth one. ओके।
हाँ, this saying कि MPM, this saying they have written like this. This is 1 plus 1 into P1, 2 into P2, 3 into P3, and N into Pn, right? प्रूव क्या करना है? तो as such, 1, what is 1? P1 is basically 1 P1, है ना? P2 is 2 P2, P3 is 3 P3, and so on. N is NPN. तो गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है इतनी जोर से, MPM stand for this. Now, using the formula, what will be 1P1? 1 factorial. 1 factorial by 0 factorial. 2P2 would be 2 factorial. 3P3 would be 3 factorial. And NPN would be N factorial. देख लो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज NPR होता है N factorial over N minus R factorial, right? So NPN would be N factorial by N minus N factorial, which is N factorial. So NPN is always N factorial. जबकि राइट साइड में हमें चाहिए N+1 factorial, तो थोड़ा सा इसमें जुगाड़ करना पड़ेगा. 1 को कैन आई राइट 2 minus 1? 2 को कैन आई राइट 3 minus 1? 3 को कैन आई राइट 4 minus 1? डैश डैश. N को कैन आई राइट N+1 minus N? इतना एक बार लिखो, अब आंसर आ जाएगा. तो ब्रैकेट ओपन कर दो. वन क्या? हो गया. क्या? N+1 minus N तो 1 हो गया. N+1 minus 1 होना चाहिए ना? ये होगा. अब ब्रैकेट ओपन करें, ये हो जाएगा 2 into 1 factorial minus 1 factorial. ये वाला ब्रैकेट क्या होगा? 3 into 2 factorial minus 2 factorial. नेक्स्ट हो जाएगा 4 into 3 factorial minus 3 factorial, right? डैश डैश N+1 into N factorial minus N factorial. यहां तक ठीक है? ब्रैकेट ओपन कर दिया. N+1 था ना वो, इसको मैंने एक टर्म मान लिया ना. अब 2 into 1 फैक्टोरियल क्या होता है फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी से? इट इज 2 फैक्टोरियल. What is 3 into 2 factorial? 3 factorial minus this is 2 factorial. Then it is 4 factorial minus 3 factorial and so on. ये हमारा हो जाएगा N+1 factorial minus N factorial. अब तुम यहाँ पे देखो, N+1 into N factorial is N+1 factorial. अब क्या कटता जा रहा है? इस तरह से सब कुछ कट जाएगा. एंड में क्या बचेगा? N+1 factorial. मैंने ऐसे किया, ऐसे काट दिया.
देखो, 2 फैक्टोरियल और -2 फैक्टोरियल कट गया, 3 से 1 कट जाएगा। अरे यार, ये दिमाग घर पे रख के आती है। इसकी मम्मी ने कहा बरसात का मौसम है, दिमाग गीला हो जाएगा, घर पे रख के जाओ क्लास में। है ना काव्या? 2 फैक्टोरियल नहीं कटेगा, 3 से 3 नहीं कटेगा। मतलब इसे कॉल्ड टेलीस्कोपिक सीरीज, फर्स्ट लास्ट टर्म को छोड़ के सारी टर्म कट जाती है, लास्ट बट वन को छोड़ के। आंसर इज राइट हैंड साइड। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेसिकली हमारे बेसिक जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे ना, हमने सारे कर लिए हैं। अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। हम्म ये कर चुके हैं ऑलरेडी। यही से करते हैं। नहीं, इसमें कुछ नहीं किया। अरे नहीं किए, बताओ फिर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स करते हैं अब, ठीक है? हाँ, कर लिया था, 22 कर लो। करो, कौन सा? वो फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग बताया था। इफ समथिंग कैन बी डन इन एन वेज, another can be done in m ways, the total number of ways can be done is n into m ways. Some activity can be done in n ways, another in m ways, yet another in p ways. So in total that activity can be done in n into m into p ways. ये होता है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग से कर लो, अदरवाइज यू कैन यूज फॉर्मूला ऑल्सो। एनपीआर, देखो बताता हूं मैं, रीड करो क्वेश्चन। अ रूम हैज हाउ मेनी डोर्स? क्वेश्चन, कोई बात नहीं, 21 क्वेश्चन, रीड करो चिल्ला के। राइट। तो एंटर करने के लिए कितने ऑप्शन है उसके पास? 6 ऑप्शंस हैं। लेकिन जिस रूम एंड ही कैन नॉट कम आउट फ्रॉम द सेम डोर दिया है ना क्वेश्चन में, सो हाउ मेनी डोर ही हैज ऑप्शन टू कम आउट? 5। सो इंटू 5 इज इक्वल टू 30। थोड़ी सी कहानी लिख देना बस। चलो करो अब क्वेश्चन। क्वेश्चन करते जाओ, अब रुकना नहीं है अब। जो अभी किया था वो रट्टा कहाँ था? वो दिमाग लग वो दिमाग लगाया था, उसमें दिमाग लगाना पड़ा, यूज हुआ पहली बार। क्वेश्चन 22। हम्म। हाँ, मैं लिख लिख के करना है। हाँ, मार्क्स नहीं मिलेंगे। हम्म। अब इस सम वाले 26 क्वेश्चन छोड़ दो, इसका मैं तुम्हें फॉर्मूला दूंगा बाद में। इसमें दो, ये भी छोड़ देना, ठीक है? 26। क्या? फाइंड द नंबर ऑफ
four-letter words which without meaning, which can be formed out of the letter of the word rose when the repetition letter is not allowed. So when repetition is not allowed, चार बॉक्सेस बना लो या तो चार अंडरलाइन बना लो, ठीक है। रेपिटेशन अलाउड नहीं है फर्स्ट पार्ट में, तो इस प्लेस को कितने वे से फिल कर सकते हो? चार ऑप्शन है तुम्हारे पास, आउट ऑफ आर ओ एस ई, राइट। सेकेंड प्लेस थ्री, P एंड देन टू एंड वन। आंसर इज 24. हाँ, तो ये कितना आ गया? 24 आ गया। सेकेंड पार्ट में रेपिटेशन अलाउड है, यहाँ पे चार ऑप्शन थे, सपोज तुमने आर यूज कर लिया तो यहाँ पे तुम आर दोबारा यूज कर सकते हो, सो इट विल बी फोर। यू कैन अगेन यूज वट एवर लेटर यू हैव यूज्ड, सो दिस इज व्हेन रेपिटेशन अलाउड। देख लो ना पीछे, 4 raised to power 4 कितना आ रहा है? 256. 256। Can we only use the formula विच वन फॉर्मूला? NPR? हाँ, n⁻r। if you're comfortable with the formula you can use formula, otherwise जैसे यहाँ पे इस वाले में हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, अरेंजिंग फोर लेटर्स आउट ऑफ फोर लेटर्स, और अरेंजिंग 4 out of 4 letters, so it'll be 4 factorial by 0 factorial. Answer is 24. So we can also use formula. कौन सा? ट्वेंटी फोर। हाँ, तो 10p4 हो गया ना, तो सीधा सीधा out of 10 alphabets you're using how many? 4. So 10p4 would be 10 factorial by 10 minus 4 factorial. So 10 factorial by 6 factorial, that is 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial. नीचे 6 आ रहा है ना? वो भी कर सकते हो, अगर तुम्हें इसको फंडामेंटल मेथड से करना है। नंदिनी कहाँ हो तुम? नंदिनी, इधर ही हूँ सर। मुझे लगा तुम सो गई, आज कुछ एक्सरसाइज की, लेग्स वेग्स किए क्या? थक गई हो तुम? ये क्या करती है, रोजाना हैवी एक्सरसाइज कर लेती है, उसके बाद थक जाती है, फिर सोती रहती है नंदिनी? यस सर। आज क्या किया? आज तो मैं स्कूल से लेट आई थी। अच्छा अच्छा। तो अगर इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग से करना है तो 4 places टू बी फिल्ड, 4 boxes टू बी फिल्ड, दिस यू कैन यूज 10, रेपिटेशन अलाउड नहीं है 8 and 7। ये था फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग। फॉर्मूला करना है तो फॉर्मूला भी कर सकते हो, तो विच एवर मेथड यू आर कंफर्टेबल यू कैन यूज दैट। 26 अभी छोड़ देना, बाद में करेंगे। पिछा कौन सा कर रही हो? ट्वेंटी टेकन ऑल एट द टाइम, तो रेपिटेशन मत लो। जब तक मेंशन नहीं कि रेपिटेशन है तो रेपिटेशन मत लो।
अद्विका क्या कर रही हो? 28, 26 हो गया। अच्छा 26 बाद में करेंगे। 25। सो हम्म इसे होता है ना बुक वन, और एक बुक का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3, ऐसा ना, उस टाइप का इस मीन्स। कौन से क्वेश्चन है बाय द वे? हम्म 27 हो गया सभी का? लोगैरिथम में सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट है ना? या राइट। तो 27 नंदिनी हो गया। 20। यस। ठीक है। प्रिशा, 27 क्वेश्चन किस वाले में? फिर तो भी फॉर्मूला हमने वो किया नहीं, करते हैं वो भी। मैं बता देता हूँ। आई 1 मिनट, 1 मिनट, एक बार देख लो सभी लोग। लाइक इफ यू हैव द वर्ड इक्वेशन and the question is find all the words with or without meaning, ठीक है, taking all the letters of the word equation, तो सारे letters distinct है ना, so number of ways you can permute will be 8 factorial, simple, that is which is same as 8p8। लेकिन इसकी जगह अगर क्वेश्चन होता अलाहाबाद, ठीक है, ये ले लेते हैं, find the total number of permutations taking all the letters of the word अलाहाबाद। इसमें क्या हो रहा है? रेपिटेशन हो रहा है, नहीं। ए कितनी बार आ रहा है? 4। एल कितनी बार है? और बाकी लेटर्स सारे 1 बार है ना। तो वेन एवर लेटर्स आर रिपीटेड, उसमें से क्या होता है कि जो नंबर ऑफ परमुटेशन हैं या कॉम्बिनेशन कम हो जाते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो भी रेपिटेशन हो रहा है उससे डिवाइड करना होता है। एल 2 बार आ रहा है, 9। 5p8 का तो मीनिंग कुछ नहीं होगा ना, 8 तुम 5 में से कैसे ले सकते हो? 5p8 का मतलब is arranging 8 letters out of 5, which is not possible. So whenever you have repetition of items, this is the formula you can use. मैं इसको जनरलाइज करके लिख रहा हूँ अब, लिख लो सब लोग। Suppose we have m plus n plus p articles, out of which p are all alike, n all alike, and p all alike. Then the total permutations will be always m plus n plus p factorial divided by m factorial n factorial p factorial। ये इसका फॉर्मूला होता है। इफ यू हैव मतलब वन काइंड जैसे यहाँ पे सारे एक जैसे थे, ये सारे दोनों एक जैसे थे, उससे डिवाइड करना होता है। तो टोटल objects, total number of articles, items का factorial divided by the repetitions. So this is when you have these kind of questions. But अभी मेरे ख्याल से उसमें तो ऐसा कुछ था नहीं, logarithm में तो सारे distinct थे ना। सारे लेटर्स को यूज किया है ना, इलाहाबाद के सारे लेटर्स को यूज करके। वो आएंगे, विल कम टू दैट क्वेश्चंस। हम्म there are two works each of 3 volumes. Two work each of 2 volume. In how many ways can the 10 books be placed on a shelf so that the volumes of the same works are not separated? क्या है ये? There are two works A and B. इसके 3 वॉल्यूम हमारे पास हैं, ठीक है, 1 2 3।
बी के कितने हैं? 3 वॉल्यूम। दे आर 2 वर्क्स ईच ऑफ 3 वॉल्यूम, 2 वर्क तो 3 वॉल्यूम के हैं, तो 6 बुक तो ये हो गई हमारे पास, ठीक है। एंड 2 वर्क्स सी एंड डी आर ऑल्सो देयर, इसका एक वॉल्यूम है, दूसरा वॉल्यूम है, इसका एक वॉल्यूम है, दूसरा वॉल्यूम है, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास 10 आ गई। तो वॉल्यूम का मतलब होना चाहिए यहाँ पे दे आर आइडेंटिकल, जैसे कि यू हैव एस एल अरोड़ा ले लो, ठीक है, तो सेम 3 वॉल्यूम तुम्हारे पास आ गए, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम, दे आर विल बी आइडेंटिकल। अब क्या हो रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द बुक्स बी प्लेस ऑन शेल्फ सो दैट वॉल्यूम्स ऑफ सेम वर्क आर नॉट सेपरेटेड, मतलब ये वॉल्यूम्स हैं, जैसे वॉल्यूम 1 2 3, ये नहीं नहीं, बुक ए हैज 3 वॉल्यूम्स, 3 पार्ट में बुक ए, हाँ, बुक ए हैज 3 पार्ट्स, ए बी सी डी द बुक्स एंड देयर वॉल्यूम्स, लाइक वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3। अब क्या दिया कंडीशन उसने, द वॉल्यूम्स आर नॉट सेपरेटेड, ठीक है। तो हाँ मैं बताता हूँ, वापस यहीं पे आ जाते हैं, इक्वेशंस पे आते हैं। सपोज देयर इज a question, you've been given a word equation, and the question is arrange all the letters of word equation so that vowels are always together, ठीक है। इसमें कितने वॉवल्स आ रहे हैं, ई यू ए आई ओ, सारे के सारे वॉवल्स हैं, तो ये हो जाएगा क्यू टी एन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन था फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग सो दैट ऑल द वॉवल्स आर टुगेदर, तो हम क्या करेंगे, वॉवल्स को इकट्ठा कर लेंगे, इसको मैं एक मान लूंगा, ठीक है। दिस इज 1 2 3 4, आई हैव 4 लेटर्स विद मी, सो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 4 लेटर्स इज 4 फैक्टोरियल विदाउट रिपीटिशन, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल हो गया, लेकिन ये जो वॉवल्स हैं वो भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, इंटू 5 फैक्टोरियल करना पड़ता है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे आंसर करते हैं। सो नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग इन विच ऑल द वॉवल्स आर टुगेदर वुड बी दिस। अगर क्वेश्चन ये होता दैट नो 2 वॉवल्स आर टुगेदर, ऑल द वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, अगर क्वेश्चन होता दैट ऑल द वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, तो हम क्या करते हैं, टोटल में से ये माइनस कर देते हैं। अगर क्वेश्चन होता दैट फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑल द वॉवल्स आर नेवर टुगेदर, तो टोटल वर्ड्स माइनस दोज इन विच वॉवल्स वर टुगेदर। यस, अब लेट्स कम बैक टू द सेम क्वेश्चन। इसमें उसने क्या बोला, शेल्फ में उनको अरेंज करना है सो दैट वॉल्यूम्स ऑफ द सेम वर्क आर ऑलवेज टुगेदर, तो इनको मैं इकट्ठा मान लूंगा, दे आर टुगेदर, ये भी इकट्ठा और ये भी इकट्ठा, तो आई बेसिकली हैव 4 वर्क्स, तो 4 फैक्टोरियल हो गया। लेकिन इन वॉल्यूम्स को 1 2 3 भी हो सकता है, 3 2 1 भी हो सकता है, दैट मीन्स दे कैन बी अरेंज हाउ मेनी वेज, 3 फैक्टोरियल वेज। नहीं, एंड दिस, जब भी एंड वर्ड आएगा यू मल्टीप्लाई, लिख लो ये, परमुटेशन के क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, जब भी एंड वर्ड आता है ना, दिस एंड दिस, तो मतलब मल्टीप्लाई करोगे, जब भी और वर्ड आएगा यू हैव टू ऐड, रिमेंबर दिस। In questions involving permutation, combination, probability, if you come across and you multiply, you come across or you add, तो मैंने 4 वे से इनको अरेंज किया इनटू 3 फैक्टोरियल, इनको 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर होना चाहिए। 3 4 5 6 क्या? इनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। अच्छा, 3 4 5 6, आंसर क्या है पीछे? यही है। सो इफ यू कम अक्रॉस वर्ड्स और एंड में मल्टीप्लाई करोगे और में ऐड करोगे। तुम कहाँ हो?
नंदिनी, वेक Yeah, अप। I'm awake, sir. कौन सा? अभी करते हैं। ऑर्डर में चल रहे हैं। 28 था ना, 20। जो ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है? कर लिया 29। बच्चा क्वेश्चन है। चलो लिखो। आज की क्लास में तो 4 लाइनें लिखी हैं सिर्फ। 10 लाइन हो गई, 12 हो गई। सॉरी। मुझे लगा तुम लिख ही नहीं रही हो। दिखाओ। ए डिनोट द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ x+2 थिंग्स टेकन ऑल द टाइम। तो ए हो गया x+2 का फैक्टोरियल। x+2 p x+2, x+2 फैक्टोरियल हो गया ना। 5 ऑब्जेक्ट का 5 ऑब्जेक्ट्स का परमुटेशन कितना हुआ है बताओ मुझे। 5 फैक्टोरियल होता है। 5 p 5 इज 5 फैक्टोरियल। तो a इज बेसिकली x+2 होल फैक्टोरियल। b नम इफ आई आस्क यू दैट कि 4 ऑब्जेक्ट्स को तुम्हें परम्यूट करना है, तो व्हाट इज योर आंसर? विल बी 4p4। दैट्स 4 फैक्टोरियल। तो x+2 का कितना हुआ? x+2 फैक्टोरियल हो गया। b नंबर ऑफ परमुटेशन x थिंग्स टेकन 11 एट a टाइम, मतलब दिस xp11। c is permutation of x minus 11 things taken all at time so that a is equal to 182, x minus 1, but this is 11 factorial. या बताया था ना, n p n is always n factorial. इस फ्राइडे को हमारी फिजिक्स क्लास नहीं हो पाएगी, मेरे को कहीं जाना है। किसी की डेथ हो गई, वहाँ जाऊंगा मैं। एंड विल हैव लॉन्गर क्लास आई थिंक नाउ, 2 hours। उनको वर्क पर आने सबका आ रहा है ना? नहीं यार, हाँ। सो ए वॉज परमुटेशन ऑफ x+2 ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल सही किया। B was permutation of 11 out of x objects, and C was permutation of x minus 11 objects. Permutation of n objects taken n at a time is n factorial. क्या हुआ? इस सीटेड इन रो ना। इसको गैप मेथड से करते, मैं आपको बताता हूँ अभी। तुमने क्वाड्रेटिक बना ली, कंसेक्यूटिव से भी कर सकते हो तुम।
हम्म, दिया हुआ है, अलाउड है, अलाउड है, दे रखा है उसमें, क्वेश्चन पढ़ो। क्योंकि एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, उसमें हमें 3 डिजिट नंबर बनाना था फ्रॉम 0 to 9, तो उसमें फर्स्ट वाले में हम 0 दे देता। तो ये ऐसे होता है, vowels occupy all places. हाँ तो ऑड प्लेसेस पे अरेंज कर लो उनको। हाउ मेनी ऑड प्लेसेस देयर? हाँ तो 4 प्लेसेस में 1, उसको ऐसे कर लो ना, नंबर कर लो उसको, 1, 3, 5, 7। ठीक है, 4 प्लेसेस, हाउ मेनी वोवल्स आर देयर? There are 4 vowels, so four odd places, 4 vowels. So they can be arranged how many ways? 4p4 ways. And remaining कितने places हैं? Remaining places कितनी बार? भाई 4 odd places में 4 vowel को कितने वैसे करोगे अरेंज? 4p4। रेपिटेशन अलाउड कहाँ है? कहाँ दे रखा है रेपिटेशन अलाउड? जब मेंशन नहीं है तो रेपिटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, अब 4 प्लेसेस आर लेफ्ट। 4 प्लेसेस में रिमेनिंग कॉन्सोनेंट्स हैं, सारे डिस्टिंक्ट है। 4p4 बड़े आराम से वेर से भी हो गए तो 24 and 24। हाँ 576। भाई 4 कॉन्सोनेंट भी तो बच गए ना। हाँ 576, नॉट 4 वेज कैसे हो जाएंगे? हाँ तो 4 फैक्टोरियल 4 प्लेस ऑड प्लेसेस फिल्ड, एंड यूल से एंड यू वोंट से और। लिखो इसको अब। हम्म, 31 बताता हूँ मैं, गैप मेथड सिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है? गैप मेथड के क्वेश्चन कर लो। क्या क्वेश्चन है पढ़ना? दृष्टि एक बार पढ़ो, क्वेश्चन 31 है ना? हम्म। हम्म, and 3 girls, no? And the question is no 3 girls together, no 2 girls together। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? यूज गैप मेथड। ठीक है, व्हाट इज गैप मेथड? जिनको तुम्हें इकट्ठा नहीं बिठाना है उनको पहले अरेंज मत करो, बॉयज को अरेंज कर लो। ठीक है, 5 बॉयज को मैं अरेंज कर देता हूँ, B1, B2, B3, B4, B5। तो 5 बॉयज कैन बी अरेंज हाउ मेनी वेज? 5p5 फैक्टोरियल। ठीक है,
5 बॉयज को हमने अरेंज कर दिया। अब कितने गैप्स आ गए? लुक एट द गैप्स। 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 प्लेसेस में हम गर्ल्स, हमारे पास 3 है, 6 प्लेसेस में 3 गर्ल्स को अरेंज कर दो। सो नो 2 गर्ल्स विल बी टुगेदर। सो इन 6 प्लेसेस यू कैन अरेंज 3 गर्ल्स। तो सपोज मान लो तुमने गर्ल को यहाँ अरेंज कर दिया, एक को यहाँ अरेंज कर दिया, एक को यहाँ अरेंज कर दिया। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर बट बॉयज आर टुगेदर, वो पॉसिबल है। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल था ना, इसको सॉल्व कर लो। सो दिस इज कॉल्ड गैप मेथड। तो जब भी रेस्ट्रिक्शन वाले क्वेश्चंस आएंगे ऐसे करना है। गुड, लिख के किया ना? एग्जाम में फेयर कर लो, गैप मेथड सीख लो। 31 वाला इसमें था कि नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, तो ऐसे क्वेश्चन को गैप मेथड से करते हैं। पहले हमने 5 बॉयज को अरेंज कर दिया 5 फैक्टोरियल से, उसके बाद कितने गैप्स आ गए? 1 2 3 4 5 6। 6 प्लेसेस में 3 गर्ल्स को अरेंज कर दिया 6p3 वेज से। तो दीज आर वेज इन विच नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। बस गैप मेथड इज द बेस्ट फॉर दीज क्वेश्चंस। इसके और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा मैं, ठीक है? बाय ओके, सर। बाय। थैंक यू। दिव्या, फ्राइडे को फिजिक्स क्लास नहीं हो पाएगी, मेरे को है ना किसी के उसमें जाना है, डेथ में ना। तो वेडनेसडे को तो नॉर्मल क्लास होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, आई कीप 2 आवर क्लास ठीक है। फ्रॉम कमिंग नेक्स्ट वेडनेसडे, 2-2 घंटे क्लास कर लेंगे, ठीक है? एंड रोटेशन में तुम्हें अलग से पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू। ओके, बाय।